Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। It's really wonderful time to be in the house of the Lord. ये एक अच्छा अद्भुत समय है प्रभु के भवन में आने के लिए। And really praise and worship must have really edified us. ये जो प्रार्थना थी, प्रार्थना या आराधना थी, आपको रियली आत्मिक तौर से उन्नत कर गए होंगे। So immediately going into the word, let us have a recap of what we had seen last Sunday. और पिछले सप्ताह हमने जो देखा था उसकी ओर एक बार ध्यान करेंगे। We had two slides that we gone through. The first slide said that in the first slide we had two situations wherein if we are in the presence of a God and the situation worldly realm, the situation is bad. और हमने दो स्लाइड देखे थे, उसमें से एक जो था वो संसार संबंधी चीजें जो है, संसार जो है उसके संबंध में थी। So in one slide, one situation was, though the situation in our life is very bad, but still if we are in presence of God. एक पहली सी जो परिस्थिति ऐसी थी कि हम प्रभु के उसमें में है, समस्या जीवन में है, लेकिन हम प्रभु में है। And the second situation was, though we are good in all worldly realms, everything is good, fine, but still if we are not in the presence of God. लेकिन दूसरी जो है संसार संबंधी चीजों में हम बहुत उन्नत है, बाहर है, लेकिन प्रभु में नहीं है। And it was decided that the first situation is good, when though the situation in our life is bad, but still if we are in presence of God, it is a good situation. और हमने ये ठहराया था कि जो प्रभु की उपस्थिति में है तो हो सकता है जीवन में समस्या हो, लेकिन वो अच्छा है। So in the other word, we meant to say that from now onwards, RARM Church won't be praying for any worldly things. तो इसका मतलब यही है कि हमने यही ठहराया था कि इसके आगे ये मंडली जो है संसार संबंधी चीजों के लिए प्रार्थना नहीं करेगी। Is that so? ऐसा है, but it's not practically possible. लेकिन सच में ये संभव नहीं है। Okay, so down the line, we started prayers and all our situations are rectified. और हम सोचते हैं कि हम प्रार्थना शुरू कर दिया, सारी समस्या छूट गई है। And immediately then, what is the scene is that we go away from God. और उसके बाद ये होता है कि हम प्रभु की उपस्थिति से दूर जाते हैं। So we saw that prayers are important, but the prayers should be in line with the God's plan. लेकिन हमने देखा कि प्रार्थना महत्वपूर्ण है, लेकिन वो प्रभु के अनुसार होनी चाहिए। Because the situation comes broadly for three reasons. परिस्थिति विकट आती है तीन महत्वपूर्ण कारणों के लिए। One is just major reason is just because of our sins and our decisions that we make in our lives. विशेष रूप से हमारे जो पाप हम कुछ जीवन में निर्णय लेते हैं उसका कारण आती है। The second reason is for the glorification of His name. दूसरी उसके नाम को गौरव देने के लिए आती है। And the third reason is He's shaping us, He's molding us for a very big plan. और तीसरा जो है उसकी योजना के अनुसार वो हमें ढाल रहा है। And from two examples that we saw, one is from Hannah and one is from Elijah, we saw like how they prayed. Though they were common people, they prayed and God answered their prayers. हम हन्ना और एलिया के बारे में देखा था कि वे साधारण व्यक्ति थे, लेकिन परमेश्वर ने उनके जीवन में किस तरह कार्य किया था। Why did God answer their prayer? Just because they prayed in the line of God. उनके प्रार्थना को इसलिए जवाब दिया गया क्योंकि वो परमेश्वर के अनुसार थे। Prayers have to be in line with the God. प्रार्थना परमेश्वर के अनुसार होनी चाहिए। Okay. So now let's go ahead. आगे चलते हैं। Now we pray. हम प्रार्थना करते हैं। Now we expect answer from God. हम परमेश्वर से जवाब अपेक्षा है। Okay. We expect God to speak to us. हमारी अपेक्षा है कि परमेश्वर हमसे बातें करे। So that can be through any channel, be it from a prophet, through a pastor, through a word, or through anything. वो किसी माध्यम से, चाहे वो पासवान से हो या संसार के बातों से हो, लेकिन किसी माध्यम से। But the major question comes. सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, are our ears and heart are open to hear that solution? क्या वो जो समाधान है उसकी ओर हमारे आंख, हमारा हृदय है क्या? If you see in Matthew 5:35 to 36, Jairus, the example of Jairus. और यहाँ पर जो है मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय की ओर देखेंगे, यहाँ पर जो है जायरेस के बारे में लिखा गया है। 5:35 to 36. 5:35 की ओर हम ध्यान देंगे। 35:36. 5:35, 5:36 मराठी में कोई पढ़ेगा? नहीं, मैथ्यूज 5. न पृथ्वी की, क्योंकि वो 5:35 से
आपल्या मस्तकाची शपथ वाहू नका. Right, it कारण is. तू आपला एकही केस I think so. I have written something wrong. This is the example of Cyrus, basically. So when Cyrus was was taking Jesus to his daughter's house, याइर जो था अपने बेटी के लिए यीशु मसीह को अपने घर लेकर जा रहा था इसके बारे में, he heard the people saying that her daughter has been dead. और उसने सुना कि उसके लोग कह रहे हैं कि उसकी बेटी मर चुकी है. But Jesus was telling, have the faith and she will not die. यीशु मसीह कह रहे हैं कि विश्वास रखो वो मरी नहीं है. Many of us are sometimes come across this situation. ये परिस्थिति हमारे जीवन में भी कई बार आती है. When the medical report says that this is a problem in you, मेडिकल रिपोर्ट कहते हैं कि जीवन में ये समस्याएं हैं, but God says with my stripes you have been healed. यीशु मसीह परमेश्वर कहते हैं कि मेरे कोड़े खाने के द्वारा चंगाई हुई है. Your bank statement says your financial condition is very pathetic. आपकी बैंक स्टेटमेंट कहती है आपकी आर्थिक समस्याएं परिस्थिति बहुत खराब है. But the word of God says, ask and it shall be given. परमेश्वर का शब्द कहता है पूछो मांगो दिया जाएगा. Which word are you going to listen? हम इनमें से कौन सा शब्द सुनेंगे? The fact, सच्चाई, which is reality, जो सच्चाई है, or the word of God, या तो फिर परमेश्वर का शब्द which is based on faith, जो विश्वास के ऊपर आधारित है, which you can't see it immediately. It's not tangible rather. वो आप देख नहीं सकते और उसको आप उसकी गिनती नहीं कर सकते. We cannot see it immediately, हम उसे तुरंत देख नहीं सकते, but we have to accept it by faith. लेकिन विश्वास के द्वारा हमें उसे स्वीकारना पड़ता है. As in Deuteronomy 30:15-16 it says, Deuteronomy 15:16, अनुवाद 15 30, अध्याय 30, 15 and 16. 30, 15, 16 Yeah, 30, chapter 30, verse 15 and 16. अनुवाद 30 अध्याय 15 और 16 पद. पहा, जीवन व सुख आणि मरण व दुःख ही आज मी तुझ्या पुढे ठेवली आहे. तू आपल्या देव परमेश्वर याचवर प्रीती कर, त्याच्या मार्गाने चाल आणि त्याच्या आज्ञा विधी व नियम पाळ. ही आज्ञा मी आज तुला देत आहे, म्हणजे तू जिवंत राहून बहुगुणित होशील आणि जो देश बदल करून घेण्यास तू जात आहेस तेथे तुझा देव परमेश्वर तुला बरकत देईल. And 19 and 20. 19 और 20 भी. आकाश व पृथ्वी यांना तुझ्याविरुद्ध साक्षीला ठेवून मी आज सांगतो की जीवन व मरण आणि आशीर्वाद व शाप मी तुझ्या पुढे ठेवले आहे. म्हणून तू जीवन निवडून घे, म्हणजे तू व तुझी संतती जिवंत राहील. आपला देव परमेश्वर त्याच्यावर प्रीती कर, त्याची वाणी येईल व त्याला धरून राहा, कारण त्याच्या तुझे जीवन आहे व त्यामुळे तू दीर्घायू होशील. तसे केलेस तर तुझे पूर्वज Yes. अब्राहम, इसहाक व याकोब यांना जो देश देण्याची परमेश्वराने त्यांच्याशी शपथ वाहिली होती त्यात तुझी वस्ती होईल. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो. So now in the Deuteronomy also God has given you a choice, everyone a choice. यहाँ परमेश्वर ने हर एक को एक चुनाव दिया है. This is good and Yes. this is bad. ये अच्छा है, ये खराब है, But choice is yours. लेकिन चुनाव आपका है. God has not make you robots. When He presses the button, you start walking. When He presses the other button, you sit. परमेश्वर ने आपको रोबोट नहीं बनाया कि बटन दबाने के दौरान ही आप चलो. He has given you a chance. आपने उसको एक मौका, उसने आपको एक मौका दिया है. From time of Adam and Eve. आदम और हवा के समय से Adam and Eve were given the choice not to either to eat the forbidden food or not to eat it. उन दोनों को चुनाव दिया था कि वो जो फल था उसको खाना है या नहीं. They were not restricted. The tree was there. There were two trees. One was a forbidden fruit and one was a tree of good life. और एक अच्छा जीवन का एक वृक्ष था और एक दूसरा था. दोनों अलग अलग फल थे. They were asked not to eat the fruit of good and bad. और उनको जो है अच्छा बुरा समझने वाला जो फल था वो ना खाने की आज्ञा दी. But what they did? लेकिन उन्होंने क्या किया? Instead of eating the fruit of life, they ate the fruit of good and bad. और उन्होंने जो है जो अच्छा और बुराई का जो समझने वाला जो फल था, जो जिन्हें नहीं खाने के लिए कहा गया था, वही खाया. Choice was given to them. उन्हें चुनाव दिया गया था. The decision that you make today, आज जो निर्णय नया आप करते हैं, the decision that you make today आज जो निर्णय आप लेते हैं, will decide your future. आपके भविष्य को निर्धारित करेंगे. During that time, they took a decision of eating that food. उस समय उन्होंने वो जो फल खाने का निर्णय लिया They bear the fruits. और उनको उनके फल मिले.
Now let's turn our Bible to our main topic is Genesis 12, 1 to 5. उत्पत्ति 12, 1 से 5. Yeah, this is a example of Abraham. We see the story of Abraham starts from there. और अब्राहम के बारे में जो है यहाँ से शुरुआत होती है. Now in verses 1 to 5, Abraham has been promised. Let's read it. Genesis 12, 1 to 5. और 1 से 5 पद जो है वहां पर इसके बारे में लिखा गया कि अब्राहम को किस तरह वचन दिया गया था. परमेश्वराने अब्राहमास सांगितले, तू आपला देश, आपले नातेवाईक व आपल्या बापाचे घर सोडून मी दाखवीन त्या देशात जा. मी तुझपासून मोठे राष्ट्र निर्माण करेन. मी तुला आशीर्वाद देईन. तुझे नाव मोठे करेन. तू आशीर्वादित होशील. तुझे जे अभिष्ट चिंतितील त्यांचे मी अभिष्ट करेन. तुझे जे अनिष्ट चिंतितील त्यांचे मी अनिष्ट करेन. तुझ्याद्वारे पृथ्वीवरील सर्व कुळे आशीर्वादित होतील. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो. Now this was a promise given to Abraham, right? ये वचन जो है अब्राहम को दिया गया था. And if you see the background of Abraham, अब्राहम का अगर पार्श्वभूमि हम देखेंगे he was a well settled family. He had a very well settled family. और ये वो एक अच्छे कुटुंब से Strategically placed in Mesopotamia port. और मोसेपेट जो बंदरगाह था वहां से वो मूल रूप से था. And he had a very steady and settled family business of making idols. और एक बहुत ही अच्छा वहां पर जो है मूर्ति बनाने का जो कुछ कार्य करने का उनका व्यवसाय था. Which was very flourishing business at that time. और उस समय वो बहुत ही अच्छा ऐसा एक व्यवसाय था. So he was totally settled. और वो अच्छी तरह से सेटल ऐसा व्यक्ति था. He had a family. उसको एक कुटुंब था. Though he didn't have a child that time. हालांकि उसको उस समय बच्चा नहीं था. But financially he was very stable. लेकिन आर्थिक रूप से बहुत ही ऐसा सेटल ऐसा व्यक्ति था. So he had nothing to do with God and anything like this, like to hear his voice or whatever. और उसको परमेश्वर से उसके आवाज से कोई लेना देना नहीं था. But still he heard the voice of God. लेकिन फिर भी उसने प्रभु की वाणी सुनी. Though he was not a believer or like he knew Jehovah. वो उस समय यहोवा को नहीं जानता था और ना ही वो विश्वासी था. But still he believed the God. लेकिन फिर भी वो परमेश्वर पर विश्वास रखने वाला. Then he was asked to leave this family and his parents and everyone. और अब उनके सारे लोगों को छोड़ करके जाने के लिए उसे कहा गया. By faith he did that. विश्वास के द्वारा उसने वो सारा किया. Now by default Sarah had to go follow him. और स्वाभाविक रूप से सारा को भी उसके पीछे जाना पड़ा. Being a wife, she had to do that, whether she liked it or not liked it. पत्नी वो पसंद करे या ना करे उसके पीछे उसको जाना पड़ा. So she also left. उसने उसे छोड़ा. Now Lot. और उसके बाद लोट जो है, Lot was not giving any promise. और लूत जो है उसे कोई वचन नहीं दिया गया. No word came to Lot. उसके लिए कोई शब्द आया ही नहीं था. Lot was settled over there. वो वहां पर स्थित था. But he took a decision. लेकिन उसने एक निर्णय लिया. He took a decision to follow Abraham. उसने अब्राहम के पीछे जाने का निर्णय लिया. Can you imagine Lot leaving his family, his money, his business and all, because it was a family business. लूत का जो व्यवसाय था, जो पैसा सारा कुछ था, लोग थे, वो सारे छोड़ करके. But Lot took that decision. लेकिन उसने छोड़ने का निर्णय लिया. Knowingly, unknowingly. जानते हुए अजानते हुए. He took that decision. उसने वो निर्णय लिया. Even Abraham didn't know where he was going. अब्राहम नहीं जानता था कि वो कहाँ गया. But still he trusted his uncle that he was going somewhere good. बट लूत ने जो है उसका अंकल का जो चाचा थे उससे उसको विश्वास रख के जाना सही समझा. And he left his family. उसने अपने कुटुंब को छोड़ा. Settled business. और जो व्यवसाय स्थित था उसको छोड़ दिया. And followed a dark an uncertain future of. और एक ऐसे मार्ग पर निकला जिसमें कोई शाश्वती नहीं थी. When Abraham was also roaming. अब्राहम जो था वो भी भटक रहा था. Abraham also didn't know where is this Canaan place and what will happen to him next time. उसे भी पता नहीं था कनान कहाँ है, आगे क्या होने वाला है. But Lot followed him. पर लूत जो था वो उसके पीछे चलता रहा. And then what they went to Canaan. वो कनान चले गए. If you see verse 5 and 6, they roamed places here and there, and then they went to Canaan. 5वें 6ठे पद में देखेंगे तो वो यहाँ वहाँ भटके, उसके बाद वो कनान पहुंचे. And then when there were drought over there in that place, उस समय वहां पर अकाल था. so what they did is उन्होंने उस समय क्या किया? they went to Egypt. वो मिस्र देश में चले गए. They went to Egypt. Abraham went, Sarah went, and Lot also went to Egypt.
अब्राहम सारा वो सारे मिलके जो है इजिप्ट चले गए Now you know the story what happened in Egypt. और वहां पर क्या हुआ वो आप जानते हैं। They stayed over there, वो वहां पर रहे but Pharaoh came to know the truth about Abraham and Sarah, और वो फारो राजा था, उसको अब्राहम सेरा के बारे में सच्चाई पता चली। and he asked them to leave that place उसने also. उन्हें वहां से निकल जाने के लिए कहा। And again Abraham came to Negev. Sorry, Negev place. और उसके बाद जो अब्राहम जो है वो निगेल की जगह पर आ गया, Back to Bhople Chowk. फिर वो अपनी पुरानी जगह पर आ गया He went all the place of Egypt और वो मिस्र देश में चला गया सब जगह पर, and again came back to Negev where he was supposed to stay over there. और फिर वो अपनी पुरानी जगह पर आए जहां पर निगेव जगह पर आ गया। Now if you see Genesis 13:1 and 2, what does it say after he coming back to Negev again? जब वो फिर से निगेव इस देश में आए, निगेव क्षेत्र में आया, तो 1 और 2 पद कहता है, अब्राहम अपनी पत्नी और समस्त संपत्ति के साथ मिस्र देश से नेगेव क्षेत्र की ओर लौटे। लूत उनके साथ था। अब्राहम अपने पशुओं और सोना चांदी के कारण बहुत धनी हो गए थे। Praise the Lord. Right. Praise the Lord. स्तुति हो। Now when Abraham left his place, his Ur place, और अब्राहम की ऊर जो जगह थी वो उसने छोड़ दी। he just took his own property. उसने सिर्फ अपना हिस्सा जो था वो ले लिया था। He took his property, he went to Canaan place, he roamed over there, went to Egypt, there he stayed for some period. और वो वहां से निकला, फिर कनान आगे जाके वो इजिप्ट चला गया, वहां उसने कुछ कार्य किया। And then he came back. By the time he came again back to Negev, what is they say? He had been flourished. और वो निगेव अपनी जगह पर जब लौट के आया तो आप देखते हैं कि वो जो है वो धनवान हो गया था। Children of God, when you listen to God, परमेश्वर के बच्चों, जब आप परमेश्वर को सुनते हैं, though you might see nothing in immediate basis, हो सकता है आगे आपको कुछ भी दिखाई ना देता, but I challenge you, your future is bright. लेकिन वो चुनौती देते हैं कि आपका भविष्य उज्जवल। Though you might see a darkness in front of you. हो सकता है आपके सामने घोर अंधकार हो। Abraham didn't have anything. He just took his property and just started walking. Where don't know where is this Canaan place. He never knew where is he going. अब्राहम निकल गया, उसके हाथ में जो उसका हिस्सा था वो ले लिया उसने। वो कनान नहीं जानता था कहाँ जा रहा है, कुछ भी नहीं जानता था। But God blessed him with everything. लेकिन परमेश्वर ने उसे हर चीज में आशीषित किया। Genesis 13:1-2 say Abraham was blessed. But if you see in verse 5, what does it say? Genesis 13 verse 5. अब्राहमाबरोबर लोट जात होता, त्याचीही मेंढरे, गुरे, डोळे व पाले होती. Praise the Lord. त्यास एकत्र राहण्यास तो No, प्रदेश पुरेना. that's it. So Abraham was also blessed, अब्राहम भी आशीषित था। and what we see, Lot was also हम क्या blessed. देखते हैं कि उसका भतीजा लूत जो था वो भी आशीषित था। He was also blessed separately. वो अलग रीति से आशीषित था। Though no promise was given to him, हालांकि उसे कोई वचन नहीं दिया गया था, but knowingly and unknowingly he took a decision to follow Abraham. जानते अनजानते उसने जो है वो एक निर्णय लिया कि अब्राहम के साथ उसके पीछे हो लेने का। God didn't bless only Abraham, सिर्फ अब्राहम को आशीषित नहीं किया, but he blessed Lot also. लेकिन उसने लूत को भी आशीषित किया। Children of God, God is not, if you say I have followed Jesus, आप ये देखिए, सोचिए कि अगर आप कहते हो कि मैंने यीशु मसीह के पीछे हो लिया है, and if you keep that decision अगर faithfully, वो निर्णय जो है आपने प्रार्थना के अनुसार रखा है, God will not leave you like this. परमेश्वर आपको ऐसा अकेला नहीं छोड़ेगा। Though your bank balance is zero today, हो सकता है आपका बैंक बैलेंस आज 0 हो, though your medical report is very pathetic, आपके मेडिकल रिपोर्ट जो बहुत खराब होंगे, though your relationship must be the worst of the kind, आपके रिश्ते नातों के साथ आपका व्यवहार खराब रहेगा, but if you are in faithful with God, लेकिन अगर आप प्रभु के साथ, परमेश्वर के साथ विश्वास रखे हो, God will listen to your prayers. परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुने। Now we see going ahead, we आगे see चलते a हैं। situation now, both Abraham and Lot have been flourished. आगे चल के हम देखते हैं कि अब्राहम और लूत जो था, अब्राहम और लूत ये दोनों बहुत उनके जीवन में बहाली आई। Now see, the decisions that you take will decide your future. जो निर्णय आप लेते हो आपके भविष्य को वो सुनिश्चित करेगा। Now there is a situation. यहाँ पर एक परिस्थिति है। What does this 8 say?
that verse, chapter 13, verse 6 and 8, what does it say? ये 13 अध्याय 6 और 8 पद क्या कहता है? यहाँ पर छठे पद में देखेंगे, उस देश में इतना बड़ा चारागाह न था कि वे एक साथ रह सके, क्योंकि उनके पास पशु और सेवक सेविकाएं इतनी थी, अधिक थे कि एक साथ नहीं रह सकते थे। 8वां पद देखेंगे, अब्राम ने लूत से कहा, तुम्हारे और मेरे मध्य तुम्हारे चरवाओं मेरे चरवाओं के मध्य झगड़े नहीं होने चाहिए, क्योंकि हम रिश्तेदार हैं। Okay, so now both have been blessed. अब दोनों आशीषित हैं, Not just blessed, but abundantly blessed. सिर्फ आशीषित नहीं, बहुतायत से आशीषित है। That the land they were staying couldn't occupy them. कि जहाँ पर वो रहते थे वो उसमें समा नहीं सके। And there is a small problem coming up. एक छोटी सी समस्या उभर आ रही है। What is that? वो क्या थी? The quarreling between their herdsmen. उनके जो चरागाह थे, बाकी जो लोग थे, उनके चरवाहे थे, उनके बीच में झगड़ा हो सकता है। There was no dispute between Lot and Abraham, if you see that. अब्राम और लूत के बीच में झगड़ा नहीं था, अगर आप देखो। What was the dispute between? लेकिन झगड़ा कहाँ था? Some of their herdsmen or some people among their two clients. हो सकता है उनके चरवाहे या उनके जो कुछ लोग थे उनके बीच में। Okay, so now when the dispute was going, जब वो झगड़ा चल रहा था, what did Abraham told Lot? अब्राम ने लूत से क्या कहा? That let's get departed. कि हम अलग हो जाएं, Okay, let's get departed. हम अलग हो जाएं। What did Lot do it? लूत ने क्या किया? Immediately took that decision. उसने तुरंत निर्णय ले लिया। Why? क्यों? Self-contained now. क्योंकि वो आत्मनिर्भर ऐसा हो रहा था। He has got a good property now. उसके पास बहुत सारा धन था, He has got the wealth very well. उसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, धन था उसके पास। He is self-contained now. वो स्वयंपूर्ण था, समाधानी था। He takes a decision immediately. उसने तुरंत निर्णय ले लिया What to get separated? कि अलग हो जाए। The decisions that you make today, जो निर्णय आज आप लेते हो, the decisions that you make today जो निर्णय आज आप लेते हो, will decide your future. आपके भविष्य को निर्धारित करेगा। And it's very important when you are in a good position, when you are wealthy, when you are in a very good worldly situation, that time what decisions you make. और वो समय जब आप धनिक हैं, आप बहुत अच्छे हैं, सब कुछ सारी चीजें आपके पास है, तब आप क्या निर्णय लेते हैं? When you don't, we are not depend upon God, we are depend upon our wealth. When we depend upon our knowledge, when we depend upon our wisdom, we have everything of the world. खास करके ऐसे परिस्थिति में जब आप अपने आप पे, आपकी परिस्थिति पे, आपके जो संसार चीजें उनके ऊपर आप निर्भर होते हो, That is the time, that is the catch of a devil. और शैतान ठीक यही समय साधता है, And then he makes you take decisions one after the other. और उसके बाद आपको एक ही पीछे एक निर्णय लेने के लिए वो मजबूर करता है। And then you feel, oh, I am taking decisions, I am being blessed, I am being good, I am being knowledge, I have the knowledge, I have the wisdom, you have everything, and there I factor comes. और वहां पर जो है, मैं ये निर्णय ले सकता हूँ, मैं ये कार्य कर सकता हूँ, सारा कुछ मैं आता है, उस समय ये मैं जो है, ये गुणक यहाँ पर आता है। So in verse, now we see, they had a dispute, 6-8, and verse 10, what does it say? और 6 और 8 पद में हमने देखा कि उनके बीच में हो सकता है झगड़ा हुआ, तो फिर 10वें पद में क्या है? अतः लूत ने अपनी आंखें ऊपर उठाई, सामने देखा, सोर की दिशा में यर्दन नदी की घाटी प्रभु के उद्यान एवं मिस्र देश की भूमि के समान जल से सर्वत्र सींची हुई थी। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। What does he say? He looked along. उसने क्या किया? उसने दूर देखा, And he saw the best of the land. और उसने एक बहुत अच्छी ऐसी भूमि देखी, Greenery land. जहाँ हरी चारागाह थे, Where it was a fertile land. वो बहुत ही अच्छी भूमि थी, Everything very good. बहुत सब कुछ अच्छा था। And he was to be make a decision now. अभी उसको वहां पर निर्णय लेना है। On a worldly basis, what did what he said immediately? और संसार संबंधी बातों में, विश्वास में उसने तुरंत क्या कहा? I'll go to that land. कि मैं उस भूमि की ओर जाऊं। And if we see verse 12, what did it say? और 12वां पद अगर हम देखते हैं तो 12वें पद में उसने कहा, अब्राम कनान देश में बसे, लूत पाटी के नगरों में रहने लगा, उसने सदम नगर के पास अपना तंबू गाड़ा। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। What did Abraham do? अब्राम ने क्या किया? He went to his promised land, Canaan. उसने जो शब्द दिया गया था, उस
तो भूमि की ओर वो चले गए। And what did Lot do? लूत ने क्या किया? He went to a fertile land. उसने एक बहुत अच्छी भूमि की A ओर very good land. एक बहुत ही अच्छी भूमि थी, Very attractive land. आकर्षक भूमि थी। The world's attraction. संसार का आकर्षण जो होता है, The world's attraction संसार का जो आकर्षण होता is है, a distraction from God's path. वो परमेश्वर के आकर्षण से परे होता है। The world's attraction संसार का आकर्षण is a distraction from the God's path. वो परमेश्वर के मार्ग से परे होता है। And this happened to Lot. और लूत के साथ यही हुआ। One time he took a decision when he had nothing with him. जब कुछ ना होते हुए एक बार उसने जीवन में निर्णय लिया था, God blessed him. परमेश्वर ने बहुत आशीषित किया। Now when he had everything, जब उसके पास सारा कुछ है, he took a decision of separating उसने अलग होने का निर्णय लिया। from God's people, वो परमेश्वर लोगों से, from his promises, उसके वचनों से, from his house, उसके उस ग्रह से, and went to a very beautiful place. वो एक बहुत अच्छी जगह पर चला गया। He went over there. वो वहां पर रहने के लिए चला गया। Now, days went past. दिन बीतते गए, Things were going very well with Lot over there. चीजें लूत के साथ वहां अच्छी घटती गई, Slowly and steadily, Abraham was also settling. और यहाँ पर अब्राहम भी स्थिर होता गया। And then what happens? फिर क्या हुआ? Genesis 14:13 to 16. इसी पुस्तक की 4 अध्याय 13 और 16 14. Genesis 14. 14। Yeah, 1-4. तो ये इस 14 अध्याय के 13 and 16. 13 और 16 पद हम देखेंगे। 13 पद में लिखा है, एक मनुष्य जो भागकर बच गया था इब्रानी जाति के अब्राहम के पास आया, उसने यह समाचार दिया, अब्राहम बांज वृक्षों के जंगल में रहते थे। यह जंगल एमोरी जाति के ममरे नामक व्यक्ति का था। एक वह एशकोल और अनेर का भाई था। ये तीनों अब्राहम के संधि मित्र थे। 16 पद, तत्पश्चात वह अपनी संपत्ति, अपने भतीजे लूत और उसकी संपत्ति तथा स्त्री पुरुषों को छुड़ाकर वापस ले गए। Now in this what happened is, in this Sodom and Gomorrah, there was a war set up between in that province. यहाँ पर क्या है कि सदा गमरा में उन लोगों के बीच में एक युद्ध छिड़ गया। And what happened? Lot, they conquered this Sodom and Gomorrah. और वहां पर लूत के बारे में हम देखते हैं कि उन्होंने जो है सदम गमरा के ऊपर कब्जा कर लिया। And the enemies took all the wealth and everything of Lot. और शत्रु ने जो है लूत की सारी संपत्ति लेकर चले गए। And Lot was totally zero now. और वो फिर से शून्य हो गया। But one of the soldiers went and told Abraham that this thing happened at Lot's place in Sodom and Gomorrah. लेकिन वहां का सिपाही जो है उसने अब्राहम को जाके ये बात बताई कि ये सारा धन लूट कर लेकर गए लोग। So what did Abraham do? He अब्राहम ने went, क्या he took किया? few soldiers, उसने कुछ सैनिकों को लिया साथ में, went back to that enemy, उस शत्रु की ओर चला गया and got all the property of Lot back again. और इसकी जो भी धन संपत्ति लूटी गई थी सारी लौट कर लेकर आया। God will give you one more chance again. परमेश्वर फिर से आपको एक बार मौका देता है। Lord God one more chance. Whatever was destroyed of his by the enemies, लूत को और एक मौका दिया गया, जो कुछ उसके शत्रु के द्वारा नष्ट किया गया था he got it back again. उसको फिर से लौट कर मिल गया। What does it say? Everything that was taken, plundered by the enemy, Abraham got it back again. वचन कहता है सब कुछ जो शैतान लेकर गए थे सारा कुछ उसको अब्राहम ने लौटा दिया। The wonderful thing in God's presence is a U-turn. प्रभु की उपस्थिति में सबसे महत्वपूर्ण बात, आश्चर्यकारक बात यह है कि हम अपने मार्ग से फिर से एक बार पुरानी मार्ग की ओर लौटे। Though you might have done bad decisions, though your past must be very bad, हो सकता है आपका गतकाल गलत डिसीजन निर्णय जो थे वो बहुत बुरे रहे होंगे, but still you have a hope in God. लेकिन आज भी आपको परमेश्वर में आशा है। Always a U-turn. हमेशा जीवन में यू टर्न लेना जरूरी है। It's very important to take a U-turn. अपने जीवन में यू टर्न लेना बहुत महत्वपूर्ण है। Don't just crib on what you have done back. जो हमने पहले किया उसके बारे में हम कुड़कुड़ाहट नहीं करनी चाहिए। Though your past might be the darkest part, आपका गतकाल जो है वो बहुत ही अंधकार जैसा होगा, but when you take a U-turn, जब जीवन में आप यू टर्न लेते हैं, when you take a U-turn, जब जीवन में यू टर्न लेते हैं, your future is again bright. आपका भविष्य फिर से उज्जवल हो If you जाता है। see the prodigal son, उस जो पुत्र था जो पिता से भाग गया था, he took the very wrong decision. उसने एक गलत निर्णय लिया था। And when he was in the midst of pigs, जब वो उस सुअरों के बीच में था, he had two decisions to be.
उसने दो निर्णय लेने थे, whether to stay with the pigs उनके साथ रहना है, or to go back to his father's place. नहीं तो पिता के पास लौटना है। He could have taken that decision to stay over there, carry on with his situation. वो वहां रह के अपनी परिस्थिति के अनुसार चलता है, वही भी निर्णय वो ले सकता था। And maybe he might have lived a life like, okay, fine with those pigs, and he might have done a so-so life. हो सकता है सूरों के साथ वहां पर अपनी जिंदगी बसर कर सकता था, But he took a decision, लेकिन उसने एक निर्णय लिया, a bold decision, एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया to go back to his father's कि house. पिता के पास लौट जाओ। And after that, what happened? उसके बाद क्या हुआ? His life was again transformed. फिर उसके बाद उसका जीवन पूरी रीति से परिवर्तित हुआ, बदल Children हुआ। of God, परमेश्वर के बच्चों, you might have taken a very wrong decision in your life. हो सकता है जीवन में तुमने बहुत गलत भी निर्णय लिए हो, And because of this, you are sitting over here in the darkest part of your life. और आप यहाँ बैठे हो अपने जीवन में बहुत ही अंधकार में ऐसे भाग में। But today is the day of salvation. आज उद्धार का दिन है प्रियो। Today is the day of salvation. If you take a decision of U-turn today, आज उद्धार का दिन है प्रियो। अगर आप उस जीवन में यू टर्न लेने के बारे में अगर सोचते हो, your life is going to be the best. आपका जीवन एक बहुत ही अद्भुत और अच्छा जीवन होने वाला है। Only the thing is, सिर्फ एक ही बात है, you don't have to do any rituals. आपको उसके लिए कोई भी कार्य, धर्म कर्म के कार्य नहीं You करने। don't have to do a lot many things for उसके लिए that. आपको बहुत सारी अलग अलग चीजें नहीं करनी। Only one simple thing you have to do. एक सीधी सादी बात आपको करनी, A U-turn in your life. जीवन में यू टर्न You लेना। have to take a decision today. आपके जीवन में इस बात का निर्णय लेना है आज। And I'm challenging you. Your life will be never the same. हम आपको चुनौती देते हैं कि आप फिर से पहले जैसे नहीं रहोगे, Your life will be transformed. आपका जीवन परिवर्तित होगा। But the decision is yours. आपका निर्णय है। Jesus is not going to come again and tell you to do, to make you force you rather to take a decision. यीशु मसीह दोबारा आके लौट के आपको वो जबरदस्ती करने वाला नहीं है। No, none of the pastor or any evangelist or any person will make you do it deliberately. परमेश्वर का कोई दास या कोई भी सुसमाचार करता ये करके आपको जबरदस्ती नहीं करने वाला है। The decision has to be taken by you. निर्णय आपको लेना है, You have to take a decision. निर्णय आपको लेना है। Lot was given one chance. He got everything, though he had lost everything, but he again got everything. लूत को एक और मौका दिया गया था, सारा कुछ जो गंवाया था उसको लौट के मिलने का। He could have taken a decision. He could have got away from his place again. वो निर्णय ले सकता था, उस जगह से वो दूर जा सकता था, But he took the decision to stay over there only. लेकिन वहीं पर टिका रहने का निर्णय उसने लिया। Seek the Lord when he is. Seek the Lord प्रभु को ढूंढो, उसको देखो when he is being sick. जब वो दिखता है। But when the time goes, जब समय निकल जाएगा nothing can be done. फिर कुछ नहीं होगा, Nothing can be done. कुछ भी नहीं होगा उसके बाद। Then there were, though as we are living in a grace period, और जैसे हम इस कृपा काल के दौरान जी रहे हैं, there is always U-turn in this period. इस दौरान हम निश्चित रूप से हमेशा There is यू टर्न all- ले सकते हैं। There is always forgiveness. हमेशा वहाँ क्षमा प्राप्ति है। Though your sins might be the reddest of the sins, आपके पाप जो है वो कितने भी लाल रंग के हो, but I assure you, there will be a cleansing. There will be a U-turn. There will be a path for you again. लेकिन आपके जीवन हम आपको सुनिश्चित करते हैं कि आपके जीवन में यू टर्न होगा, आपके जीवन में शुद्धता होगी, सच्चाई होगी, तो दिया जाएगा। But the decision has to be taken by you today itself. लेकिन आपको इसके बारे में आज ही निर्णय लेना है, Why? Because today is the day of salvation. क्योंकि उद्धार का दिन आज है। You don't know after going down the stairs what will happen to इस any सीढ़ी one से of you. नीचे उतरते समय आप नहीं जानते कि क्या होगा आपके जीवन। Life is like a bubble. जीवन जो है बुलबुले की तरह है। But now God has got you with a purpose today over here. परमेश्वर ने आज आपको यहाँ एक हेतु के साथ योजना के तहत लाया है, You have not come by fluke over here. और ऐसे ही आप यहाँ पर नहीं आए। You have been appointed. Today was the day and time appointed for you to stay over here. आपको यहाँ रहने का आज एक सुनिश्चित समय निर्धारित किया गया था, But make the fullest of it. लेकिन उसका आप पूरा इस्तेमाल करो। Take a decision. आज निर्णय ले लो, Turn back from your life. अपने अभी वर्तमान जीवन से प्रभु की ओर मुड़ो। And the decision that you take today, now, आज और इस समय आप जो निर्णय लेने वाले हो, whatever decision that you make today, now, आज वो जो आज और इस समय आप जो भी निर्णय लेने वाले हो, will decide your future. वो आपके भविष्य को निर्धारित करेगा। Okay, so now let's go ahead. Now Lot again settles over there in that place. अब आगे चलते हैं। लूत जो है फिर से वहां पर स्थिर हो जाता है, And if you say in Genesis chapter 19, और 19 अध्याय की ओर अगर हम देखते हैं,
What does it say? Like now God is going to destroy, makes a decision of destroying Sodom and Gomorrah. और वहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है सदम और गमोरा को नष्ट करने वाला है। Now he made up his plan to destroy Sodom and Gomorrah. परमेश्वर की योजना स्थिर है, बना दी गई है कि सदम और गमोरा को नष्ट करना है। And Lot is staying over there. और लूत जो है वही रह रहा है। But still, just because Abraham pleaded God, again God told his angels to get them away from that place. फिर भी वहां पर जो है उसे उस लोगों को कहता है कि उनको वहां से दूर लेकर जाओ। God orders his angels to get Lot and his family before he could destroy that Sodom and Gomorrah. और परमेश्वर अपने दूतों को कहता है कि लूत और उसके कुटुंबियों को वहां से दूर लेकर जा, इससे पहले कि सदम और गमोरा नष्ट हो। But still, what happened? लेकिन क्या हुआ? Only Lot and his daughter were saved. सिर्फ लूत और उसकी बेटी बचाई गई। His wife again became a statue of salt. और उसकी पत्नी जो थी वो एक नमक का खंभा बन के रह गई। And now what we see is in Genesis 19:30-36. ये 19 अध्याय के 32 और 36 वचन में अगर हम देखते हैं, Now let's not read it. But then his daughter had relationship with his father Lot, और हम देखते हैं वहां पर कि उसके बेटी का अपने पिता के साथ रिश्ता है देखते हैं। and then they came out with 2 children, sons, और वहां पर उनकी उत्पत्ति में 2 बच्चे होते हम देखते हैं। and those 2 sons were into 2 nations, Ammonites and Moabites. और वो 2 बच्चे जो है उनके आगे 2 राष्ट्र पैदा हुए, अम्मोनाइट और योबाइट। Children of God, और परमेश्वर के बच्चों, the decision that you take जो निर्णय आप लेते हो will decide your future. आपके भविष्य को And सुनिश्चित what करेगा। is said about these 2 nations? और ये 2 राष्ट्र के बारे में क्या है? Nehemiah 13:1 and 2. नेहमिया की पुस्तक में 13 अध्याय 1 और 2 पद में इसके बारे में लिखा गया है। Nehemiah 13:1 and 2. नेहमिया के पुस्तक में 13 अध्याय के 1 और 2 पद में अगर हम देखेंगे तो वहां इसके बारे में लिखा गया है। त्या दिवशी मोशेचा ग्रंथ लोकांस वाचून दाखविण्यात आला। त्यात लिहिले आढळले की अमोनी अथवा मोवाबी या देवाच्या मंडळीत येण्यास मनाई आहे, कारण ते अन्नपाणी घेऊन इस्रायल लोकांस सामोरे आले नाही, पण उलट शाप द्यावा म्हणून बलामास त्यांनी दक्षिणा देऊन बोलाविले, तरी आमच्या देवाने त्या शापाचा आशीर्वाद केला। That's okay. 1 and 2, 1 and 2. नेहमिया 13 अध्याय 1 और 2 पद। उस दिन लोगों के सम्मुख मूसा की व्यवस्था का ग्रंथ से पाठ किया गया। उसमें यह लिखा हुआ मिला, तुम अमोनी और मोआबी कौम के किसी व्यक्ति को परमेश्वर की धर्म सभा में कभी प्रवेश करने न देना, क्योंकि That's okay. या What does it say? यहाँ पर ये पहला वचन क्या कहता है? These 2 tribes are not to be in the presence of God. ये 2 जो वंश थे इनको प्रभु की उपस्थिति में आने ना देना। Let's back to the start of the story when Abraham was accompanied by Lot. हम उस शुरुआत की ओर लौटे जब अब्राम जो है वो लूत के साथ जो है वहां पे चल रहा था। Until here, what is it? Abraham has been promised that your ancestors will be, blessed. और यहाँ पर जो है ये दोनों लोग चलते थे, लेकिन अब्राम जो है उसको जो है उसके पीढ़ियों को आशीष मिले करके कहा गया है। And what the next generations of Lot was given the curse. और लूत के अगले पीढ़ियों को क्या शाप दिया गया है? They will never be in God's presence. वो कभी भी परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं रहेंगे। Lot started his journey good. लूत ने अपनी प्रवास जो है वो अच्छी तरह से शुरू किया था, But when he took decisions on his own, लेकिन अपने आप में उसने जब निर्णय लिया, what his curses were transferred from generation to generation to generations. उसके ऊपर जो शाप आए वो उसके अगले पीढ़ियों से पीढ़ियों तक जाते रहे। Children of God, the decisions that you make today परमेश्वर के बच्चों जो निर्णय आज आप लेते हैं will not be just restricted to your clan or to your generation, वो सिर्फ आप और आपके इस पीढ़ी तक सीमित नहीं रहेगा, but it will be transferred from generation to generation to generation. लेकिन वो शाप जो आप पर आएंगे वो आपके अगले से अगले पीढ़ी तक चलते रहेंगे। But that decision has to be taken by you people. लेकिन इस बात का निर्णय आपको लेना है। Today is the day of salvation. आज उद्धार का दिन है, Not tomorrow,
कल नहीं, not after 6 months, 6 महीने के बाद नहीं, after your situation is going to be good. कि आपकी परिस्थिति ठीक हो जाए। No, situation and your decision making has nothing to do with each other. और परिस्थिति जो है वो आपके निर्णय लेने के लिए कोई संबंध नहीं रखती। Maybe that situation has made you to take this decision today. हो सकता है परिस्थिति के कारण आपको आज ये निर्णय लेना पड़ा। But the decision that you make today जो निर्णय आज आप लेते हो will decide your future. वो आपके भविष्य को निर्धारित करेगा। What decision are you going to make today? आप कौन सा निर्णय आज लेने वाले हो? That's okay that you have made a decision to follow Jesus. और वो ठीक है कि आपने यीशु मसीह के पीछे होना ठीक समझा है, But now he's saying to take some hard decisions of yours. लेकिन वो कहता है कि कुछ कठोर निर्णय आपके जीवन में अपने को लेने पड़ेंगे। Are you going to take it? क्या आप उसको फिर लेने वाले हो? Sodom and Gomorrah looks very good and very easy. सदम अमोरा जो थे वो बहुत ही अच्छे और आसान दिखने में थे। Satan might show you very good, easy part. शत्रु जो है वो आपको बहुत आसान मार्ग दिखाएगा, But are you ready to take God's decision? लेकिन क्या परमेश्वर का निर्णय आप लेना चाहते हैं? That might be very narrow. हो सकता है वो सकरा हो, That might be with thorns and stones. हो सकता है उसमें पत्थर कंकड़ हो, उसमें कांटे हो, But are you going to take the decision? लेकिन क्या आप निर्णय लेने वाले हो? Because when Lot and Abraham started that journey towards Canaan, जब लूत और अब्राम ने जो है उस कनान की ओर प्रवास शुरू किया, they never knew where they're going. कि उनको नहीं पता था कहाँ जा रहे हैं। They never knew what this Canaan would be. कनान क्या होगा नहीं जानते थे। See, over here it's not saying that it was a city or place with milk and honey. वहां पर जो है ये प्रदेश बहुत मधुर दूध का प्रदेश होगा करके यहाँ नहीं लिखा गया है। There were nomads over there in